That's where a lot of mind also was like that कि यार नहीं you have to go into a stable job, कुछ ऐसी जगह जाना है जहाँ मतलब कुछ भी करेंगे, मतलब doesn't matter your skill set or talent or dream, but we'll optimize our path towards a path which earns you livelihood, decent livelihood basically. I already had a personal account on Twitter. And this was in 2010. 10, yeah. तो फिर गब्बर सिंह ने देखा कि कुछ लोगों ने इसको रीट्वीट करना चालू कर दिया, 20 रीट्वीट आ गए सब, और मैं अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करूंगा तो 1000 हो गए होंगे इस टाइम पे. माय फ्लैटमेट केम रनिंग एंड सेड दिस इज दिस हैंडल कॉल्ड गब्बर सिंह, यू शुड फॉलो ऑन ट्विटर. तो इट्स अ बिग थिंग. तो वो था, दैट हैपेंड इन 2012 इटसेल्फ. तो 2012 में ही ये चीज़ हो गई थी. तो उसको लगा था कि अरे हाँ, यहाँ नाम भी आ गया था, फोटो, इमेजिन नाम फोटो सब आया था, फिर भी लोगों को लगता था कि एनोनिमस है. सो टू बेसिकली देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ कन्वर्जिंग, आई मीन गोइंग टू दैट डोर एंड टॉकिंग. So, welcome guys to Gold Teller's podcast series called Money Confessions, where we interview or get on our guest list senior startup founders, people who've been there, done that, and have some wide range of experience to share with all of you. And today's podcast is with a good friend and with an advisor at Gold Teller, and we had a long association. Extremely well known personality on social media, and now a very large startup founder also. Please welcome Abhishek Asthana, or Gabbar as he is more well known on social media circles. Gabbar is a man of multiple hats. I think founder at Hood, Gabbar on Twitter, and Abhishek Asthana at Ginger Monkey, right? So welcome Abhishek. Thanks, Vivek. Thanks for having me. It's always a pleasure talking to you, but now in front of a camera. It's good, yeah. Thank you. I think I'm sure our listeners today in this digital age will find a lot of insights speaking to you, especially that today is the age of social media, influencers, etc. I mean, very inspiring story that you've had over the last 7-8 years. Built up your own brand as Gabbar, extremely popular. You were one of the faces of Twitter as they gained popularity in India. So, could you tell us about your journey over the last decade, couple of decades? Yeah. How did you choose to be a social media influencer, and then moving away from social media to other parts, into starting up Hood and Ginger Monkey? Sure. Yeah. So, see, Vivek, I come from a background which is a bit humble. I mean, not my father and their father never had any kind of business as such. They were all service people, and they had very kind of small expectations as well. I mean, when I was studying in school and I was doing relatively well, my mother thought that if he becomes a bank PO, it will be good. That is the extent of the ambition. And because used to see that bank is a relatively stable job, and if he can have a stable income, he'll lead a reasonable okay life in the vicinity of where I was born. Basically, they never had thought that okay, someone could migrate and go somewhere and do much more. That was their level of ambition, basically. And which part of the country have you been I was born? I was in Bihar earlier. I was born in Bihar. My mother is from Bihar. My father is from UP. So my father was posted that time in Bihar that time. So that's where I was born. And so you know how the local milieu is as well. That Right. there's not much ambition. There's not much industry. For jobs, people usually go outside, and the jobs they usually go outside is usually low skilled jobs, basically. Right? There are good people who go to good colleges and stuff as well. Usually, what happens is that if suppose a kid does well in studies, he becomes like the fortune unlock for his parents or her parents, basically, right? They think that okay, if we invest in this kid, this might change our fortunes. Otherwise, it's very difficult in the traditional economy to switch jobs and stuff. I mean, switching jobs was unheard of, basically. Either you get fired or basically you quit or something happened. Government had no switching jobs anyway, and private industry as well. If suppose you are in a bigger company, you could not never switch jobs. Very difficult because नौकरी मुश्किल से लगती थी, basically, है ना.
तो दे थॉट कि ठीक है इधर पे ही करेंगे, बैंक में कर लो एंड यू विल बी स्टेबल. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग इज यूपीएससी बेसिकली. दे थिंक ओके if the kid is doing well, extremely doing well, and has some privilege as well, if suppose we can fund or back his education or preparation for 2 years 3 years, then this person can go for UPSC as well. But उतना नहीं था इधर पे, तो उनको लगा कि नहीं यार बैंक पीओ इज़ बेस्ट, वही कर लो, एक एग्ज़ाम क्रैक करो और लग जाओ. तो सी द एनीवे, एंड आई वाज नॉट दैट किड कि यार बचपन से कि अरे यार मैं तो ये सब बकवास है मेरे लिए, आई वुड नीड टू क्रैक समथिंग बिग इन लाइफ, आई एम सेट फॉर बिगर थिंग्स, आई हैव अ ड्रीम एंड एवरीथिंग. आई वाज नॉट दैट किड बेसिकली. जो टिपिकल जो स्टोरी होता है कि आई हैड अ ड्रीम फ्रॉम द चाइल्डहुड सेल्फ कि आई हैव टू बिकम बिगर एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं था. नॉट ऑल स्टोरीज आर ग्लैमरस. So I always thought that fine, I'll just scrape by and see what happens. I remember in the 10th standard, someone asked the entire class, "What do you want to become?" So I got up and said, "Software engineer." Why software engineer? I had no idea of software. Just because software engineering at that time in the late 90s was a entry to US basically. That you can go to US and earn in dollars. That's all. And so that was the whole thing. I mean, everything was geared up towards at least getting to the next social strata for the family and yourself, because you've always seen lack of money basically, right? Every month in your household there used to be like chatter, there used to be like लड़ाई चल रही है, अरे यार ये कम क्यों हो गया, मैं मैनेज करता हूँ, जितना पैसा है उसको मैनेज करना है. So this was a constant theme. So that's where a lot of mind also was like that कि यार नहीं नहीं, you have to go into a stable job, कुछ ऐसी जगह जाना है जहाँ मतलब कुछ भी करेंगे, मतलब doesn't matter your skill set or talent or dream, but we'll optimize our path towards a path which earns you livelihood, decent livelihood basically. That so engineering is one, that's where a lot of kids go to कि हाँ engineer बन के कुछ अच्छा हो जाएगा. Engineering, MBA, everything was decided basis that only. So and while I was doing that, I was good at writing as well. I used to write stuff, and so my parents were never like कि यार कुछ इससे कुछ होगा, it's just a hobby. And I also thought कि यार ये सब बकवास है, कुछ नहीं होगा इससे. तो I used to go to हास्य कवि सम्मेलन to see like these कविज on stage and coming and narrating. रात भर बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और सुबह 400 रुपये मिल रहे हैं इनको बोलने के. And they used to go home and go to the next. That's the inspiration possibly of your कुड भी. human. हाँ, मतलब इंस्पिरेशन क्या था कि था लिखने का, लेकिन अगेन आई थॉट कि आई एम नॉट दैट ग्रेट एज वेल इन टर्म्स ऑफ राइटिंग टू बी बॉलीवुड राइटर बन जाओ जाके कहीं, या कुछ कभी मिल जाए. तो मैं ठीक है लिखते हैं. तो करते करते in 2010 basically what happened was, after of course that was the point I was relatively stable. I got a good job I was in Samsung R&D. I was a lead engineer, got like 3 back-to-back promotions, and was doing well and that was the extent basically. I had already exceeded my parental ambition कि बैंक पीओ से चलो ठीक है अब he's become a software engineer in an MNC company. तो वो हो गया था कि हाँ आप शादी करो इसकी. So but then that was the time when Gabbar Singh happened, and Gabbar Singh was the next leap in my career basically. I was sitting at home basically doing nothing. I was doing some blog and all, and Gabbar Singh का आइडिया आया कि चलो ठीक है एक ब्लॉग बनाते हैं, शोले कैरेक्टर्स ऑन ब्लॉग. तो मैंने बसंती, कालिया, गब्बर सिंह का आईडी बनाया और उस पर कुछ ट्वीट किया कि इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डालूंगा, ब्लॉग बनाऊंगा. कि एक बसंती का आईडी बनाया, उस पर 10-12 डाकू का आईडी बनाया और बोला कि इसको फॉलो कर रहे हैं. डाकू मतलब ट्विटर में फॉलो कर तो बसंती इज़ बीइंग फॉलोड बाय 12 डाकूज. सो बधनो ऐसे कुछ था. तो मैंने सब डिलीट किया. उसके बाद मैंने चलो ठीक है अब इसका ब्लॉग तो बन गया, अब पोस्ट करते हैं. आई ऑलरेडी हैड अ पर्सनल अकाउंट ऑन ट्विटर. And this was in 2010. 10 या. तो फिर गब्बर सिंह ने देखा कि कुछ लोगों ने इसको रीट्वीट करना चालू कर दिया. 20 रीट्वीट आ गए सब, और मैं अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँगा तो 1000 हो गए होंगे इस टाइम पे. तो फिर मैंने चलो करते हैं. करते करते देन व्हाट हैपेंड वाज माय फ्लैटमेट केम रनिंग एंड सेड दिस इज दिस हैंडल कॉल्ड गब्बर सिंह, यू शुड फॉलो ऑन ट्विटर. आई सेड करे तो फैल रहा है. तो देन दैट इज द डे सिंस अभी तक रोज कुछ ना कुछ इट बिकेम एन आउटलेट बेसिकली. सो आई नेवर हैड अ सेट थिंग कि यार दिस इज अ ब्रांड और दिस इज एन अकाउंट आई हैव टू मैनेज, सो आई विल हैव टू डिवोट रिसोर्सेज, I'll take time to plan out कि हाँ ये 3 आज जाएगा, 4 जाएगा, और ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए. I never had that. I always used to like open the Twitter app and tweet whatever I came to my mind, and that basically helped also. And that's where Twitter became like, and network happened. A lot of people started following. I grew. Twitter also grew in India, and more and more celebrities started joining in, and that became my horizontal then. In the sense it became कि there is a place where I can derive network out of. I need to build verticals now.
that is businesses basically. So I always thought कि यार, if suppose you know someone, if you know a high net worth individual, what is the way to convert that lead? One way to convert that lead is telling them कि आप मेरे को अपना जो product है आप डिस्काउंट पे दे दो. The worst way to basically convert a lead. Second way to would be to say कि ठीक है आप मेरे को जॉब दे दो, आपकी कंपनी में अगर कोई ओपनिंग है तो आई एम गुड इनफ. Like suppose someone, given the premise is that a high net worth individual is someone who is good, someone who is big, knows you that you are smart on social media. That's the premise, right? So how do you convert that? How do you? That's a unlock of a door basically, right? I mean, it won't convert, but it will at least give you an audience to that person. So to basically there are various levels of converging. I mean, going to that door and talking. One way is to say कि मेरे को प्रोडक्ट दे दो सस्ते में. आप सपोज यू आर द CEO ऑफ मारुति. आप बोलो कि यार मुझे कार दिलाओ, तो हम क्या मैं बहुत पेंडिंग है, बहुत वेटिंग चल रही है, आप मेरे को थोड़ा सा जल्दी दिला दो. ये एक तरीका है करने का. एक तरीका है कि आप बोलोगे कि यार मुझको ना आपके पास कोई जॉब है क्या, आई एम गुड एट मार्केटिंग इन स्टफ, तो आपके पास रीजनल मार्केटिंग मैनेजर के रोल है, आप मेरे को इंटरव्यू करा दो. एक ही तरीका हो गया. एक तरीका है कि आप बोलो कि यार मैं आप क्लाइंट बन जाओ, आप मेरे पास ये सब सर्विसेज हैं और आप ये करो. चौथा है कि आप बोलो मैंने इन्वेस्ट करो मेरे बिजनेस में, है ना. तो ये दीज आर वेरियस लेवल्स ऑफ थिंग. तो आई रियलाइज कि एट ईच लेवल आई नीड टू डिराइव सम बेनिफिट और टू सी कि व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस हॉरिजॉन्टल. दैट्स वेयर सो सब्सटेंस इज ऑलवेज देयर. इट वॉज नेवर थिंग दैट कि मैं जस्ट उसके सहारे पे कर रहा हूँ. इट वॉज ऑलवेज लाइक कि वंस आई गेट एट द डोर आई विल शो माई सब्सटेंस, बट इट विल एटलीस्ट गिव मी द एंट्री टू द डोर. एंड बिकॉज इट विल नेवर सर्वाइव. अदरवाइज जस्ट लीड लेके आप जाओगे तो कभी अगर प्रोडक्ट नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो कुछ चलेगा नहीं कभी भी. तो दैट्स वेयर आई सॉ. पहले ट्विटर पे लोगों ने अप्रोच किया कि हाँ भाई मोनेटाइजेशन हुआ ट्विटर पे. देन जिंजर मंकी हैपेंड. And while I was doing a traditional MNC job as well, which was, I mean, taking care of my parents, I got married as well during that time only, because I realized कि it's very difficult to get married अगर आप कुछ आलतू फालतू काम कर रहे हो. मतलब entrepreneurial spirit को usually potential father-in-laws don't respect. I think things are changing now, but yeah, I think 10 years back. हाँ, so 7-8 years, so it was very difficult to even get a house, rented house. शादी से छोड़ दो. मैं भी 2 स्टार्टअप किया हूँ. पहले स्टार्टअप में लोग ज्वाइन नहीं करते थे. इस स्टार्टअप में गेटिंग द टीम इज मच ईजियर. चैलेंजेस है. बट तो आप बताइए कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आया आपके लाइक सोशल मीडिया में, एंड आपने सोचा कि इससे आई कैन मेक अ लाइवलीहुड ऑफ इट फ्रॉम योर गब्बर पर्सोना, एंड आपने कब अपने आप को डिस्क्लोज किया पब्लिक को कि अभिषेक इज गब्बर? मैंने क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि 2 लाइफ्स होते हैं. हाँ, देखिए एक चीज़ है जो कि आई फॉलो अ लॉट इज फेम इज़ टेम्पररी, एनोनिमिटी इज़ परमानेंट. आपको मतलब आप कितना भी फेमस हो जाओ, राइट, देयर विल बी सम गाय लाइक तुम कौन हो. ठीक है, अभी भी कभी कोई मैं व्हेन आई डिस्क्लोज माय नेम ऑन सोशल मीडिया, लेट्स से कि अब तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग पूछते हैं अच्छा तो नाम अभिषेक है तुम्हारा नाम, ओह व्हाट डू यू डू, क्या करते हो. तो मतलब यू कैन नेवर बी 100% फेमस अनलेस यूर ऑन टीवी और फिल्म स्टार जो भी है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि देयर विल बी लेयर्स. सो आपका कभी ऐसा कभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहा ही नहीं कभी भी. मतलब थिंग्स, some tweets would have done well, there was this outlook story that the magazine did back in 2012. They put me on the cover page, so it was like big thing. I mean that time होता ना कि if magazine के cover page पे आप आ रहे हो, national magazine के cover page पे, तो it's a big thing. तो वो था, that happened in 2012 itself. तो 2012 में ही ये चीज़ हो गई थी. तो उसको लगा था कि अरे हाँ यहाँ नाम भी आ गया था, फोटो, इमेजिन नाम फोटो सब आया था, फिर भी लोगों को लगता था कि anonymous है. तो मतलब वो ही होता है. हम जब अपना आप जब AMA करते हो तो मैं पढ़ता हूँ, एंड हम जब ट्विटर स्पेसेस भी करते हैं तभी भी देखते हैं कि आप कमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रोलिंग होते रहता है. बट हाँ वो सब चलता है. बट आपने कब ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग विच नाउ मीन्स बिजनेस फॉर मी, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव टू टेक सीरियसली, कि मुझे रोज ट्वीट करना ही है, या आपको लोग मिस करते हैं अगर आप ट्वीट नहीं करते हो, एंड यू कैन मेक इट अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर योरसेल्फ. Yes, so livelihood basically in 2016 I guess a brand approached me saying that can you promote us, and I said what is the way how to promote you. I said nahi, you have a good reach on social media, you also put your brains into it कि कैसे करना है. And it gave me, I think it was Cadbury House in Bombay where I went, and they called me, and these guys used to follow me. I felt very privileged because I was a B school
I just came out of B school that time, and that is an iconic property of Cadbury's in I think अभी तो नहीं है शायद, उन्होंने बेच दिया. उस समय उनके ऑफिस गया था, तो the entire brand team was there, and they gave me a lot of मतलब respect कि अरे तुम you doing something, तो I like अच्छा ये तो it's not random stuff I'm just tweeting it is people are following, and अभी भी होता है मतलब कि I get surprised someone tells me कि I follow you on Twitter ऐसे करके ये. अरे अच्छा कोई कल मैं होम सेंटर गया था तो मुझे एक बंदी मिल गई, तो बोले कि अरे अभिषेक, बोले अरे हाँ, तो बोले आई फॉलो यू ट्विटर, वेरी नाइस ट्वीट्स एंड ऑल. ये देखो ट्विटर पे ये सब नहीं होता है, ये सब जनरली टीवी और उससे होता है. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो था एक बड़ा, जब आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. फिर देन आई स्टार्ट मोनेटाइजिंग एज वेल. आई सेड रियलाइज कि यार देखो, अनलेस यू मोनेटाइज योर हॉबी इट विल डाई ऑफ. दैट्स माई थियरी एज वेल कि अगर आप पेंटिंग करते हो, अगर आप कविता लिखते हो या कुछ भी करते हो विच इज़ लाइक ए हॉबी, and if you are not able to monetize it, it will die out soon. Someday you will remember कि अरे मौसा जी तो पेंटिंग भी करते थे, वेरी गुड बड़ी घर में तो अब नहीं करते, तो वो रह गया. तो वही है, द पॉइंट इज कि इट विल सस्टेन ओनली व्हेन इट बिकम्स अ रेवेन्यू सोर्स, and that's where Twitter also survived. Otherwise, had I been doing my traditional job and had I said no to all that, I would have gotten consumed in family life, then job and this and that, and I would have mostly given it up. And everyone, almost 90% of the people I knew that time when they had started Twitter are not tweeting enough now, and are usually either they are gone or they have deleted their accounts, or they have quit, or they have become very very sporadic. They are consumed in their life. Job चल रहा है, ठीक है, कोई बाहर चला गया, कोई कहीं चला गया, but they haven't taken this seriously. Because I was able to monetize this, it went on. It was a course. या तो आपने जब, जैसे आपको कैडबरी ने बुलाया था, तो आप जॉब उस समय कर रहे थे हाँ. इन पैरेलल, राइट? एंड हाउ डिड दीज पीपल टेक इट? आई मीन, डिड यू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ योर employer at that point in time by of having two different professions? नहीं, तो उसमें क्या था कि it was very sketchy that time. I was in a sales job, right? And it had no the brands I used to pick were non-compete, of course. I mean, at my end itself कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना है कि if suppose I have some conviction of selling something, right? कि ये अच्छा है, I won't go to a competitor and sell it on social media. वो नहीं करूँगा कभी भी. It was always non-compete only, and people do it now. I mean, I checked with other people as well. How do they do it? So it happens, and उसमें एक और चीज़ ये भी है कि it happened later when it became bigger that people start asking this question to me कि there is this, you have to sign this clause that you can't tweet now because we know that you tweet and stuff. I said this is a deal breaker. So that is the point when I realized कि these two things can't coexist, and then I need to be the owner of my own time, or otherwise it will always be difficult. It's someone else's platform. There will be issues. They'll of course try to whittle it down. It happened. I mean, when I was working, I had tweeted something. क्या हुआ था कि we had condom ads. I was in Durex that time, right? So we made some ads that time which were the Information and Broadcasting Ministry said that you can't run condom ads before 10 p.m. kids के लिए ये है, जबकि मतलब we would only run on those channels where वो है, लेकिन they disallowed it, and it was a big prime time thing. 7 to 9 p.m. 7 to 10 p.m. is the prime time slot for media, so that is the point where you get the maximum reach. अगर आप वहाँ नहीं चलाओगे तो कोई देखेगा ही नहीं आपका ऐड, नहीं देखेगा ऐड आपका, तो फिर आपका माल नहीं बिकेगा, तो आपके नंबर्स पूरे नहीं होंगे, आपको बोनस नहीं मिलेगा और आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी. तो इट वॉज स्ट्रेट अवे हिट एट माई व्हाट आई डिड वाज आई ट्राई टू रीजन आउट विद पीपल कि क्यों बैन कर रहे हो, क्या इशू है बताओ. तो they were not able to. It was like a blanket thing. Then I talked to 40 channels that time and convinced them कि नहीं यार, आपको जो चेंज करना है मैं बोलो, मैं करता हूँ अपने ad में, and then we'll run. So I was able to convince 40 of them actually. And at this point of time, you were working at Durex. हाँ, I was working at Durex. And this advertising you were doing as Gabbar or no. as Durex? As Durex. So I was making my ad, basically Durex का ad, and वो नहीं चला रहे थे न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल वाले. तो मैंने क्या किया कि एक ट्वीट किया था कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की वजह से आज रात को मैं 12 बजे तक घर ऑफिस में बैठा हूँ. मतलब आई वाज मेकिंग दोज एडिट्स टू गेट इट अप्रूव्ड, एंड 2 days लेटर माय बॉस दैट टाइम शी केम टू मी एंड सेड कि ये ट्वीट मत करो इट्स गोना गेट प्रॉब्लमेटिक. आई सेड कि नहीं, आई डोंट पुट आउट माय एम्प्लॉयर नेम और माय नेम इटसेल्फ ऑन माय सोशल मीडिया. देयर इज नो कनेक्शन एज सच. आई मीन दिस इज जस्ट लाइक गेटिंग बैक एट मी कि नहीं ये मत करो. मतलब होता है ना टिपिकल बॉस मेंटालिटी कि यार नहीं, ये गलत है.
देयर इज नो रीजन, बट ये गलत है। तो आई रियलाइज कि नहीं यार, You थिंग्स, might have been worried about a backlash on the आई brand. नो, हाँ आई नो, बट लेकिन पॉइंट है, सी आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई नो, मतलब दैट इज अ, आई एम देयर, आई एम एट द Your टॉप। expertise is there. हाँ, आई एम सिटिंग एट द लाइट हाउस, आई एम सीइंग कुछ हो रहा है गड़बड़ तो मैं बंद करूंगा। उसमें आप रोक दोगे। लेकिन हाँ। एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आया अभिषेक कि आप पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम्म। तो ये आपने जो ड्यूरेक्स ज्वाइन किया एज अ क्रिएटिव और मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो ये स्विच, हाउ डिड यू मैनेज टू टेक दैट हाँ, स्विच? तो ये सिंपल है, देखिए, आई टेल यू द क्या था कि जब रिवाइंडिंग टू द प्रीवियस स्टोरी, आई वाज इन सैमसंग, आई वेंट टू साउथ कोरिया, मतलब टिपिकल जल्दी ऑन साइट मिल गया, तो वही था ना, गोल्डन होली ग्रेल की, ऑन साइट मिल गया तो वाह क्या बात है, लड़का अच्छा कर रहा है करियर में। तो वो सब सही था, बट देन व्हेन आई जॉइन ट्विटर ना, तो मुझे आई रियलाइज कि देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज इन बॉम्बे दैट टाइम for a launch of a phone. So we used to code Samsung phones. So there was this launch happening, and we were there to solve some network issues. कुछ तो last minute कुछ issues होते हैं, bugs होते हैं, तो the team which has worked on that will go, and they'll send one or two people who are the lead people, and they'll go and fix any last minute issues, and they'll ensure the launch is smooth. So I went to Bombay, and I was sitting with my colleague that time, and then suddenly there is a well-suited, booted guy who came into the cabin. We were sitting in the conference room basically. The temporary employees है, बिठा दो conference room में। तो वही वो घुसा अंदर, and he had another guy with him who also suit boot में था बिल्कुल। वो बोलता है these are our resources। these guys are resources, और and we had a name, right? तो he didn't even कुछ वो नहीं किया उसने, but he's like कि these are our resources, और वो चला गया। तो मैंने अपने कलीग को बोला कि यार, आई मीन वी आर देयर टीम ओनली, वी आर हेल्पिंग टू गेट दिस लॉन्च, वाई आर वी ट्रीटेड एज फैक्ट्री मशीन्स? ये रिसोर्स है हमारा, इससे बनेगा, माल निकलेगा, हम आगे बेचेंगे। देन ही सेड नहीं दोनों ऐसा नहीं है, सी व्हाट ही कैन डू वी कैन नॉट डू, एंड व्हाट वी कैन डू ही कैन नॉट डू। बट मैंने बोला जब ये ड्युअलिटी है तो वाई इज ही गेटिंग प्रोमिनेंस? वो बोलता है ओ मैं 3 बजे लंच पे जा रहा हूँ मैं, और तुम लोग करो काम जल्दी खत्म करो। देन आई रियलाइज कि ये फिर जब व्हेन आई वेंट बैक टू बैंगलोर, जब 1 महीने बाद जब लॉन्च हुआ, तो पेपर में आया फोटो, पेपर में इसका फोटो था फ़ोन लेके ऐसे। मैंने बोला यार काम हमने किया, एंड उसकी फोटो कैसे आ रही है? एंड दैट्स अ टिपिकल टेकी माइंड सेट एज वेल। टेकीज थिंक दैट ओके मैंने बनाया है सब कुछ, तो मेरे को प्रोमिनेंस क्यों नहीं मिल रहा है? कोई और कैसे क्रेडिट ले रहा है? तो देन आई फिगर्ड आउट दैट दिस गाय इज एन MBA, तो इसने MBA किया है और ये बिजनेस में चला गया है, तो आई वाज ए लीडर। तो दैट्स व्हाई आई थिंक नहीं यार, ये मेरे को ये नहीं करना कि मैं पीछे पीछे रहूँगा, मेरे को आगे जाना है। एंड एक और चीज़ था कि इनिशियल माइंडसेट ये था कि जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, तो ज़्यादा पैसा कब मिलता है? जब टेक में रहोगे। उस समय जब स्टार्टअप थे नहीं, तो टेक में था कि एक प्लेटू हो जाएगी आपकी सैलरी जाके, हाँ यू आर नॉट अ लीडर और समथिंग। मैंने पूछा तो बोले नहीं, जब आप MBA कर लेते हो देन योर सैलरी हैज़ नो कैप, देन इट कैन गो एनीवेयर, यू कैन बिकम अ CEO एज वेल, राइट? दैट्स द पाथ। बट अ टेकी विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ CEO इन अ रेगुलर कंपनी। यूजुअली बिजनेस वाले ही जाते हैं। वो एक माइंडसेट था, MBA किया, फिर MBA करने के बाद मैं अच्छा, ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। एंड बताइए कि आप लाइक ओवर द लाइफ ऑफ योर जर्नी एट गब्बर, what has been your best moment and your worst moment? Maybe couple of them, like हाँ। where people have told you कि आपसे काफ़ी हेल्प हुआ है, या लाइफ आपने किसी का बदला है, इट कुड बी एनीथिंग। और ट्रोलिंग लाइक तो आपको पता ही है, यू हैव ऑल्सो फेस्ड इट, यू नो हम्म, एवरीवन फेसेस इट। तो हम्म। कुछ एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पर आपको लाइक मन को काफ़ी छू गया वो चीज़। हाँ, तो देखिए ऐसे बहुत मोमेंट्स हुए, बहुत सारे, मतलब जॉब्स के लिए समवन हैज़ टोल्ड मी कि समथिंग यू टोल्ड मी, I did it at an interview, they really liked it, they clapped for it, and eventually I got a job and all that. But I guess the most heart touching was one person basically, he pinged me and said that my, I think, sister or some relative, basically she had breast cancer, right? And it was terminal, I guess. And while she was there, she really liked your tweets, and it was very painful, the process, the duration and everything, but your tweets made life a bit easier for her in that phase. And she told me to say thank you to you on this. So I was like, wow, so, but this is I have no words basically. That okay, I mean your words, your whatever you do can help someone in extreme pain as well. That was quite heart touching actually. And in terms of, I try to keep helping people in
मतलब इतना तो नहीं कर पाता हूँ कि यार सबको जो पिंग कर बहुत लोग पिंग करते रहते हैं, लेकिन हाँ मतलब अगर लगता है कि कुछ है, इफ आई कैन गिव सम टाइम, सो हाँ, आई कोविड में भी आपने काफी रीट्वीट्स किए थे अबाउट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, आई हाँ, रिमेम्बर। हाँ, वो कोविड में भी, अब जैसे कोविड के टाइम था तो उस समय भी उसके सब नहीं किया था, जिसके पास भी रीच थी उस समय, एंड इट वाज़ नॉट लाइक कि मैंने किया अकेला, मतलब बहुत लोगों ने जिसके पास भी रीच थी, सो दे रीट्वीटेड, एंड आई ट्राई टू हेल्प इन कोविड एज़ वेल ड्यूरिंग अ लॉट ऑफ बेड्स वेड्स का था मेरे पास एक्सेस, कि किस वो लोग मेरे को बोलते थे कि मेरे पास बेड्स है, आप मेरे को रिट्वीट कराओ, तो काफ़ी लोगों को हेल्प हुई उससे, मतलब इंजेक्शंस के लिए, बेड्स के लिए, ऑक्सीजन, एवरी स्टेप ऑफ द वे यू नीडेड समथिंग, इवन और हाँ, सो दिस इज गुड पार्ट ऑफ इट, बट द बैड पार्ट का भी आपको ट्रोलिंग से इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि आप सोचेंगे मैं छोड़ दूं इसको, मैंने नहीं, व्हाट इज ट्रोलिंग दिस। के ट्रोलिंग से कभी, क्योंकि क्या है ना कि बिकॉज आई हैव स्पेंड सो लॉन्ग हियर दैट मुझे पता है कि ट्रोलिंग वुड ओनली बी 5% एंड 95% पीपल वुड बी लाइकिंग इट, क्योंकि आप यू आर बेसिकली ऑपरेटिंग इन ए फ्री मार्केट, राइट? कल को आपका कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आएगा तो nobody will come and like your stuff and they'll read you. The algorithm will also not give you reach, by the way. The algorithm is the smartest, by the way. If suppose it sees there is lack of relevance in someone's stuff, people are not appreciating it, people are just scrolling past your tweet. See, simple है, अगर आप tweet आप मेरा दिखता है टाइमलाइन पे, and if you pause your thumb and try to see read it, that means you are interested, and the more you do it, right, the algorithm knows that this person is something that people like to see on their timeline, so it will show you more of it. But if you keep scrolling past में, अरे गब्बर बेकार दिखता है, हटाओ उसको, अरे क्या बकवास करेगा, हटाओ, तो if you keep scrolling past it, then the algorithm will realize कि आपका नहीं है रिलेवेंट, तो आपको दिखाएगा ही नहीं. So मेरा क्या था ट्रोलिंग में, आई थिंक इशू एक बार तो ट्विटर के एंड से हुआ था कि ट्विटर बेसिकली सस्पेंडेड माई अकाउंट, एक बार नहीं दो बार एक्चुअली. एक बार तो सबसे इशू एक बार हुआ था कि जब इमेजिन आई हैड क्विट माई जॉब, राइट, एंड गब्बर सिंह वॉज लाइक अ सेफ्टी नेट फॉर मी, एंड उस समय मेरा अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया. एंड वो इसलिए भी किया, जस्ट सिंपल रीज़न था कि मैंने किसी एक युवराज सिंह का वीडियो शेयर कर दिया था, मैं 6 छक्के वाला वीडियो था, उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक डाल के और सस्पेंड, क्यों यू हैव कॉपीराइट किया है. मैंने बोला अरे यार मैंने तो बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं, मतलब मिस्टेक होगा, मतलब मैंने फिर लिखा कि सॉरी इट वॉज आई मीन जेन्युइन मिस्टेक, बट दे वर नॉट एबल टू बज. तो फिर मैंने हॉटस्टार में कनेक्ट किया, बात किया लोगों से, क्या किया कैसे हो, तो वो भी मना कर नहीं हो पाएगा ये तो, क्योंकि लीगल में चला गया है, आईसीसी में चला गया, मतलब बहुत ही मुश्किल से मेरा फिर अकाउंट वापस आया, क्योंकि उस समय इट वाज सब्सिस्टेंस ना, कि आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो और उस टाइम पे ही आपका एक सेफ्टी नेट चला जाए तो बहुत बुरा हाल रहेगा. तो फिर वो और हुआ कैसे आया वापस अकाउंट आपका? तो मैंने जाके पहले तो देखा कि किसने स्ट्राइक लगाया है, तो आई फिगर आउट इट वाज आईसीसी का कुछ था, तो मैंने दोस्तों से पूछा कौन बनता है क्या है, तो पता चला कि कोई लॉयर है, तो उससे बात करी तो बोला नहीं, इट्स अ रेमिट टू मी फ्रॉम बीसीसीआई ऐसे करके. तो मैंने मेरे एक सीनियर थे काफ़ी, तो उन्होंने पूछा कि ही वॉज टॉप हेड हमको थे, तो मैंने बोला कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है, एंड यू नो, मतलब आई वुडंट हैव रिक्वेस्टेड यू, बट दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन माई लाइफ एंड करियर. I have given up a well-established job for something to chase my dreams and stuff, and suddenly this has happened, and this is right now this is a safety net for me. I can't be like that guy कि I can jump out. मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बाप माँ का कोई इनहेरिटेंस नहीं है, तो मेरे को कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है इस टाइम पे, एंड यही है मेरा मेन स्टे, तो आप कुछ करो इसका. तो देन ही पुट सम स्ट्रिंग्स, टोल्ड पीपल, एंड फिगर्ड आउट कि नहीं, तो दे टुक बैक द कॉपीराइट स्ट्राइक. बोले कि नहीं ठीक है, विल टेक इट बैक, इट्स नॉट वेरी हार्मफुल, आई मीन यू आर नॉट मोनेटाइजिंग इट, यू आर नॉट मेकिंग मनी ऑन दिस क्लिप. यूजुअली क्या होता है ना कि आप किसी का आईपी लेके आप उसमें पैसा बना रहे हो ना, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे आप यू गेट पेड फॉर एवरी वीडियो व्यू, तो अगर आप वहाँ चोरी कर रहे हो तो आप पैसा राइट बना रहे हो. यहाँ ट्विटर पे ऐसा कुछ है नहीं, ट्विटर पे तो आप डांट डाल दो, ट्विटर डजंट गिव यू एनी मनी इवन इफ इट गेट्स 1 मिलियन रीच, राइट. तो मैंने मोनेटाइज तो मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे. एक इनडायरेक्टली आप बोलोगे कि हाँ आप अपनी रीच बढ़ा रहे हो इसको लेके एंड ऑल दैट, वो सब वो डेरिवेटिव टाइप. समझ, हाँ, राइट. तो एंड फिर वो मान गए, तो दैट वाज द वर्स्ट पॉइंट. अच्छा, okay. So I'll switch the subject right now because it's at a critical stage. So now, we keep asking people about, as the topic of the podcast is money confessions. So आपने जैसे बताया कि your life has been pretty inspirational, where from a space where money was something very critical to this decision of your life where you moved into your own, starting your own venture while doing rubber. So सब टाइम्स में हाउ डिड यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स? कुछ आपने सिक्योरिटी नेट रखा क्या? इन्वेस्टमेंट्स किया आपने?
एंड कहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ लोन्स लिया आपने, मैंने कैन यू जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस श्योर, फैसेट ऑफ लाइफ? sure. So see, while I was there are two phases to it basically. One phase is where basically before entrepreneurship and prior to entrepreneurship. So prior to entrepreneurship, I had a fixed stream of income. My wife is also working. We both are working, and we were earning some money. We were, I mean, we had a lifestyle in Gurgaon. एंड टिपिकल कि आप साल में एक बार फॉरेन ट्रिप चले गए, दो बार कहीं डोमेस्टिक चले गए और पेरेंट्स से मिलाए, पेरेंट्स को बुला लिया यहाँ पे। और टिपिकल जो लाइफ की चीज़ें होती हैं, इंटरनेट ये वो नेटफ्लिक्स वगैरह सब वो सब कर कुरा के तो कुछ पैसे बचते थे। और एक 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 मेरा होम लोन का ईएमआई भी था उस समय। वो में थोड़ी सी बैड डिसीजन था मेरा, एज वी कीप सीइंग दिस। व्हाट आई डिड वाज बेसिकली व्हेन आई केम आउट ऑफ माई एमबीए, बिकॉज आई हैड स्पेंड सम टाइम बिफोर द एमबीए व्हेन माई फादर वाज कि या तो शादी कर लो या प्लॉट ले लो कोई सा। तो मैंने नहीं, मुझे एमबीए करना है। तो बोला ठीक है, तो अभी मत करो फिर। तो एमबीए करने के बाद एक खुजली थी कि नहीं यार घर लेना है, घर लेना है, टिपिकल इंडियन माइंडसेट। तो मैंने एक ऐसी सबवेंशन में एक ले लिया घर। एंड मतलब 2015 में लिया था और वो जाके 2021-20 में मेरे को मिला, ठीक है। एंड मैंने उसके लिए बहुत खून बहाया अपना ईएमआई दे दे के। मुझे लगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है उससे इस टाइम पे, वो डेड इन्वेस्टमेंट एक तरह से है। और मेरा प्रेशियस जो इनकम है मेरे मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स में, विच विल प्रिवेंट मी फ्रॉम टेकिंग एनी रिस्क, राइट। तो ये ईएमआई मेरा चले जा रहा है और मेरा खून चूस रहा है इसमें फालतू में। तो वो मिस्टेक था बहुत बड़ा। मतलब उस घर का आज भी कोई यूटिलिटी नहीं पड़ा हुआ है ऐसे, मैंने कभी उसे छुआ ही नहीं उसको। तो वो किया उसको। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो था कि मेरे को लगा कि हाँ, इन माई माइंड आई वॉज इन्वेस्टिंग इन अ रियल स्टेट प्रॉपर्टी। तो ठीक है, अगर मेरा ईएमआई जा रहा है ना, मतलब नहीं नहीं ठीक है, दिस मच आई एम able to save, that was equivalent to saving for me, but was not saving, it was interest payments and some amount of principal. एंड उसमें कुछ आपको अभी क्या वैल्यूएशन है उस प्रॉपर्टी का, लाइक डू यू थिंक यू हैव मेड मनी इन दिस? नो, कुछ नहीं, at best 1.25x, ओके, सो यू नॉट इवन बीटन not इट। even beating inflation, yeah. तो ये अगर अभिषेक आप ये बताओ, मैंने आप ये जब आपने बताया कि आपका एक कॉपीराइट इशू हुआ था, उस समय आपने कैसे अपना आपका घर चलाया? मैंने उस समय क्या स्ट्रेस था आपको दिमाग में, हाँ क्या हाँ। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर थे, क्या लर्निंग हुआ, ऐसा कुछ? जब मैंने, हाँ तो मैं मतलब जब मैं जॉब छोड़ी ना, तो देन आई रियलाइज कि क्या है, मतलब व्हाट इज़ माई मंथली एक्सपेंस, कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा। फॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव अ किड दैट टाइम, वी जस्ट टू ऑफ अस, बोथ वर अर्निंग एंड आर मंथली एक्सपेंडिचर वाजंट ह्यूमंगस। वी वर लाइक वेरी, ज़्यादा नहीं खर्च करते थे, अपने मीन्स में रहते थे। और माई वाइफ वॉज वर्किंग, तो दैट वॉज अ क्वेश्चन कि हाँ ठीक है। एंड देन गब्बर सिंह का भी था कि मोनेटाइजेशन हो जाता है। तो आई क्विट माई जॉब व्हेन माई गब्बर सिंह का इनकम वॉज इक्वल टू माई सैलरी। ऐसा कि ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट होगा भी तो अगर ये आ जाता है, तो मैं एवरेज आउट मैंने किया साल भर का, लास्ट 2 ईयर्स का, देखा कि हाँ यार ये नियरली इतना इक्वल हो जा रहा है तो चल जाएगा तब। एंड वाइफ का जॉब तो था ही। एंड आई ऑल्सो क्विट हैविंग ए क्लाइंट इन हैंड, मतलब वाइल मैं नोटिस पीरियड चल रहा था तब तक मेरा क्लाइंट लॉक हो गया था। एंड अच्छी बात ये भी थी कि माई एम्प्लॉयर ओनली टोल्ड मी कि आप हमारा काम कर लो, कि मतलब एम्प्लॉयर बिकेम माई क्लाइंट। तो दैट वॉज दिस दोज वाज टू। थ्रू गब्बर, नॉट थ्रू जिंजर मंकी? नहीं, जिंजर मंकी, ये जिंजर मंकी आ गया। तो तो आपने मैंने, ऑलरेडी ब्रांड वैंड क्रिएट करके कंपनी का नाम सोच लिया था, वहां पर हाँ एक हाँ सोच लिया। लॉक कर दिया था आपने? अरे मेरे को मतलब आई गिव एन एग्जांपल ना, क्या हुआ कि व्हाट स्पर्ड दिस वाज, इनिशियली आई थॉट कि आई विल जॉइन जूनियर्स कंपनी। बेसिकली उसने भी कंपनी चालू कर रखी थी बॉम्बे में। एंड ही लाइक तुम आओ ज्वाइन करो, ये वो अच्छा है, एज अ को फाउंडर एंड ऑल दैट। आई वेंट देयर एंड स्टेड थोड़ा टाइम, देखा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 2-3 दिन। तो मैं रियलाइज़ किया कि नहीं यार देखो, योर बेबी इज़ योर ओन बेबी। I mean, if someone is adopting you as a parent, you won't be a father. So I realized that it will always be, you will be a person who will just मतलब take orders and do stuff. Right? तो आप उसको अपने हिसाब से ग्रो नहीं कर पाओगे। तो देन मैंने लगा नहीं यही, और एक तो बॉम्बे मूव करने का सीन था, तो मैं बॉम्बे, आई एम वेरी अवर्स टू मूविंग टू बॉम्बे एक्चुअली। तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। मैंने रहा हूँ थोड़े दिन वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। तो फिर उसके बाद, नो ऑफेंस टू एनीवन बट फॉर इट्स अ पर्सनल थिंग, ये तो फिर वापस आया। देन एक एक फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट दीज पीपल हु हैव हेल्प मी इन द करियर without them knowing it, कि they have helped me in the very critical point. A small help would have meant a lot to me. So there's a friend of mine who basically gave me the contact of that person who had blocked my account, corporate strike का, कि इस बंदे को बात करो, ये जानता है।
दैट वाज अ लिंक बेसिकली। अगर वो लिंक नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आई हैड ट्रेडेड, मैंने ट्विटर को लिखा था कुछ नहीं, ट्विटर में नहीं हो पाएगा, इट्स अ कॉपीराइट थिंग, अनलेस दे टेक द कॉपीराइट तब आपको कुछ मिलेगा। तो ये दिस वाज द गाय हु हेल्प मी डू दैट। सेम व्हेन आई हैड क्विट माय जॉब, देयर वाज दिस गाय, startup founder, I won't name him, but this guy DM'd me saying कि can you help us doing this as a consultant? So I told him, अरे क्या consultant, I have a team, I just had me that कोई था ही Yeah, नहीं। I know what whom you're talking about. It's हाँ, a great thing. तो And नहीं नहीं, एक I आप don't think so, you know। अच्छा ठीक है ओके तो इट्स अ बिग स्टार्टअप ओनली, मतलब तो इन्होंने बोला नहीं मेरी टीम है मेरे पास। तो अच्छा बोले करो, तो फिर आओ मिलने, फिर ऑफिस ऑफिस गया उनके। मैं अकेला था तो मैंने 2 लड़कों को ले गया साथ में, अपने दोस्तों को, कि मेरे टीम में काम करते हैं। तो ऐसे करके बढ़ाया, तो वही है काफी स्क्रैपिंग। हसल किया है आपने, हम्म। काफी हसल किया है आपने। हसल किया, हाँ, हसल करते करते एक दो तीन चार करते करते बढ़ाते कई लोगों को। और अब तो खैर बहुत इनबाउंड आता रहता कभी है। आपको पैसे की माने किल्लत हुई इस लास्ट 15 इयर्स में, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? और नहीं माने यू प्लान्ड इट वेरी वेल, एंड इफ यू प्लान्ड इट वेल, आपका क्या एक डिसीजन था? व्हाट इज योर मनी प्रैक्टिस दैट हैज हेल्प्ड यू टाइड ओवर सच क्राइसिस, आइदर मनी प्रैक्टिस, और जैसे आपने बोला ना मैंने जॉब छोड़ा ओनली व्हेन आई न्यू दैट my revenue from Gabbar Singh was similar to my salary. या सो मेरा एक था कि देखो यार, आई एम अ बिग फैन ऑफ फिक्स स्ट्रीम ऑफ इनकम। सो इवन दो आई हैव क्विट माई जॉब, बट आई स्टिल बिलीव दैट कि यार पैसा तो आना चाहिए मंथ के मंथ, नहीं आएगा तो फाइट है थोड़ा। इफ़ यू आर आई मीन टेकिंग इट फ्रॉम योर सेविंग्स तो इशू है। तो मेरा देखो, आई थिंक फॉर्चुनेटली कुछ कुछ चीज़ें ठीक ठाक हुई। एक तो ये हुआ था कि जब आई वॉज इन फ्री चार्ज स्टार्टअप में था, and within 11 months it got sold out, so all our stocks got vested. It was like very small amount, but for me it was big, and that big went into my FD। तो मैंने बोला कि यार ये तो पड़ा हुआ है, तो ठीक है, ये देता है मेरे को थोड़ा सा कि हाँ ये है, इट विल एटलीस्ट टाइड ओवर 6 months ऑफ माई एक्सपेंसेस एटलीस्ट। तो वो जो इमरजेंसी फंड था वो था। तो आई वॉज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट कि यार एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एंड एक अगेन योर पार्टनर शुड बी अर्निंग एज वेल। मतलब honestly speaking, if my partner was not earning, I would have would have been working at my company. I would have never. That was I mean, Gabbar Singh leave aside, I never believed in this monetization continuity as such. Uh, it was my wife's job that basically spurred me into it, नहीं ठीक है चलो। She only told me कि यार मैं तो कर रही हूँ ना, you So take। dink helped. They call it a dink, right? हाँ, डिंक, A या dink of डबल no डिंक। kick. तो डिंक से सिंक हो गए थे हम, तो मैंने कहा चलो ठीक। तो हाँ, तो मतलब एंड वही है, इमरजेंसी फंड आई हैड 6 months का, ठीक है। और दैट वाज इट आई गेस, एंड आई डिड हैव मेनी इन्वेस्टमेंट्स यार। नाउ व्हेन आई लुक बैक, लाइक डूड कैसे रहता था दूसरे में, बिल्कुल मतलब यू हैव नो हाउस, नो प्राइमरी प्रॉपर्टी, नो मेजर सेविंग्स एज सच, एंड दैट इज व्हाट आई सी इन लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग राइट नाउ। दे आर लिविंग एंड टू एंड ओनली। मतलब what is happening is they are paying some EMI, if not EMI, some EMI they are paying, and the amount of savings they are making, the kind of SIPs they have, is not gonna be enough to tide them through the humongous expenses that are gonna come. The kid का expense भयानक रूप से महंगा अभी स्कूल है। और if you want to take a house, inflation, I mean house rates, of course, in real estate has gone crazy last, in Gurgaon itself, last 1.5 years, 40%. If suppose you want to take a primary property, it's very difficult. Home loans are 9% right now, and no investment will give you 9% return right now. मतलब issue इतना है, no risk free return at least. So life is tough right now. तो मतलब मैं जब भी मिलता हूँ लोगों, बिकॉज माई फ्रेंड ग्रुप इज मोस्टली दोज पीपल हु आर सैलरीड, माई प्रीवियस कंपनी के लोग होते हैं। मतलब मेरे ग्रुप में बिजनेसमैन या फाउंडर्स बहुत कम है। मतलब आई एम लाइक ए रिजर्व पर्सन, तो आई यूजली मीट पीपल हु आर माई प्रीवियस अवतार वाले लोग, सैलरी वाले लोग, तो उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है बहुत। आई रिसेंटली टुक ए हाउस इन गुड़गांव यहाँ पे, तो दैट वाज आल्सो दिस थिंग कि नहीं यार, आई डोंट वांट टेक लोन्स। मतलब लोन लूँगा भी तो बहुत ही कम लूँगा, जिसका कि मैं तुरंत 3-4 महीने में निपटा दूँ, बिकॉज लोन आर शिट एक्सपेंसिव राइट नाउ। 9% रिटर्न पे कौन क्यों दोगे आप पैसा यार? मतलब आप बोलोगे वो पैसा बचा के मैं कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो आप पोस्ट टैक्स 6-7% रिटर्न मिल रहा है उसको,
या आप 9% दे रहे हो होम लोन का, तो हाउ डज इट मेक सेंस? पुट दैट मनी इन होम लोन ओनली एंड फिनिश इट ऑफ, rather देन पुटिंग, थिंकिंग कि आप दिमाग में लगा रहे हो अपना, मतलब यू पुटिंग अप एक्सपेंडिंग माइंड स्पेस, स्पेंडिंग योर टाइम एंड स्ट्रेस लेके कि यहाँ लगाऊँ एंड रिटर्न यूर गेटिंग इज लेस देन योर होम लोन, फ़ायदा नहीं है, आप ख़त्म करो लोन। तो वही माइंड सेट चल रहा है अभी तो। And how has the definition of money changed? So, of course, you were much better off from there. So, how has the definition of money, like, has your lifestyle become more expanded? Like, how do you see money benefiting you? And किसी को freedom होता है, किसी को parents के support होते हैं. Like, how have you seen money change your life for the better? See, for me, money was always very important. I saw the scarcity of it. I saw fights happening in my house because the limited amount of money that was there wasn't portioned properly. I remember, I think my father used to take out 6,000 rupees from his account, and that was कैश निकल लाते थे एक बार में, एटीएम पे पहले चार्ज लगता था पहले, तो ही यूज टू ब्रिंग वन कैश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सैलरी आई 6 साढ़े 6 हज़ार ज़्यादा निकाले, एंड दिस इज़ वॉट वॉज इट बेसिकली, इसी से खर्च चलाना है। एंड दो बच्चे हैं, स्कूल है उनका, ठीक है, घर की खर्चे हैं, ये हैं वो हैं, एंड इट वॉज ऑलवेज द केस कि यार कभी भी ये नहीं हो पाता था कि यार सेविंग्स हो गई, मतलब इट वॉज ऑलवेज लाइक एंड टू एंड चल रहा है। तो आई सॉ दैट कि यार मनी ये तो इज़ फर्स्ट फॉर मी वॉज पीस ऑफ माइंड, right, to bring harmony in your life at least. So money was a initially that कि हाँ जो गड्ढे हैं ना पहले उनको भरो मनी से, ठीक है, तो your life will become slightly peaceful, then you can think of other things. Otherwise constantly you will think कि ये इस महीने का मेरा जो ये EMI आने वाला है, मेरा LIC की प्रीमियम आने वाली है, वो मैं कैसे दूंगा। मतलब माई पेरेंटल थॉट वॉज कि LIC प्रीमियम इज ड्यू नेक्स्ट मंथ, इंश्योरेंस का ये ड्यू है या कुछ ये ड्यू है, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो सोचो इसके ऊपर सोचो कि कैसे किया जाएगा इसको, ग्रेन लोन लेंगे ऑफिस से कि पीएफ से कटवाएंगे कि ये करेंगे। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, माय फादर हैड टेक मनी आउट ऑफ हिज पीएफ, एंड दैट वाज द वर्स्ट थिंग। आई मीन एनी सैलरीड एम्प्लॉय, हिज पीएफ इज हिज ईगो, हिज प्राइड, कि ये पीएफ ही मेरा प्राइवेट कंपनी में, इफ देयर वाज यू हैव अ पीएफ दैट इज गोना टाइड यू ओवर आफ्टर रिटायरमेंट, एंड इफ यू आर टेकिंग मनी राइट नाउ दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लायर भी कम हो रहा है आपका उसमें फिर, है ना। तो आई मीन इट वॉज वेरी बिग थिंग। तो पीएफ से पैसा निकाला, इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, तो इनिशियल एजुकेशन लोन मिलने से पहले जो आपको देना पड़ता है वो तो इनको देना पड़ा, तो उसी में हमारी लग गई। तो मेरे को था कि यार माई एंटायर चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन, बिकॉज वॉट यू डू इज यू ऑल्सो इनहेरिट स्ट्रेस फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट। पेरेंट्स आर स्ट्रेस्ड, यू विल ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड, एंड वंस यू गेन कॉन्शियसनेस देन यू रियलाइज कि नहीं यार मेरे को खिलौना नहीं खरीदना है क्योंकि महंगा है। ये जब तक अकल आपके दिमाग में आती है तब तक आपको फिर देन यू स्टार्ट इनहेरिटिंग स्ट्रेस एज वेल। अरे नहीं यार ये नहीं कर सकते, ये स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, ये बहुत महंगा है, ये वो ऐसा। आई रिमेंबर आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, आई हैड लाइक आई यूज्ड टू स्पेंड ओनली 12 रुपीज़ अ डे, 6 रुपये का आविन का दूध पैकेट और एक एग पफ तो वैसा मतलब ये रेजिमेंट था कि नहीं खर्चा कर ही नहीं सकते इससे ज़्यादा। तो मनी वॉज इनिशियली वॉज दैट पीस ऑफ माइंड, मनी वॉज दैट इनिशियल। दिस इज नॉट वेरी लॉन्ग बैक, आई थिंक। हाँ, नॉट लॉन्ग बैक, या दिस वॉज लाइक अर्ली 2000s, 2005-6 की बात कर रहा हूँ, 15-18 साल। हाँ हाँ, तो उस समय की बात है कि इतना था, एंड दिस कंटिन्यू टिल 2007-8 तक, जब मैं पास आउट हुआ इंजीनियरिंग से। दिस वाज द होल केस कि नहीं यार थर्ड एसी नहीं कर सकते अफोर्ड, आप भी आपको सेकंड में स्लीपर में जाना है, गर्मी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिपक गया है अपना बर्थ में आप सो गए तो आपका गाल चिपक गया क्योंकि पसीने में चिपक गया हुआ, तो निकला अरे यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये लाइफ थी। तो मतलब वी कुड नेवर थिंक ऑफ कि नहीं यार ऑप्शन भी है। फ्लाइट तो मैं माई फर्स्ट फ्लाइट आई ट्रैवल्ड व्हेन आई वाज इन 2009, जब मैं जॉब करके, तब भी लगता था कि अरे यार 5,000 रुपये खर्च कैसे करके घर जाएंगे। तो वो दिवाली में वो भी बहुत मन करके किया। तो वो सब था। तो मनी इनिशियली वॉज टू मेक थिंग्स हारमोनियस इन योर डेली लाइफ, एंड उसके बाद देन मनी बिकेम द सिक्योरिटी टू चेज बिगर ड्रीम्स बेसिकली, राइट। मनी नाउ इज बिकम मोर ऑफ अ पावर गेम। मनी इज बिकम नाउ कि नहीं यार, I know whatever money people are, we are earning right now is gonna be enough. मतलब for our taking care of our expenses is gonna be more than enough. But right now it's just कि have I scored more number than the previous month? It's become a game now. होता है ना, आप गेम खेलते हो ना कि पॉइंट्स बढ़ रहा है, मेरा पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? जबकि पैसा जो आपके पास है वो इनफ है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार और करना है और करना है। And are you enjoying that? Yeah, I think
if you have security, then you enjoy. I'm a very risk averse person. So most of my money is in risk free assets. तो मेरे को लगता है कि नहीं यार ठीक है पड़े रहने दो. एंड अभी भी आई हैव नेवर टोल्ड माई वाइफ टू क्विट द जॉब. दैट हैज़ बिन देयर. आई मीन शी टेल्स मी कि नहीं यार बच्चा हो गया हमारा 2 साल का हो गया अब तो द हार्ड टाइम्स आर ओवर. बट शी नेवर क्विट हर जॉब एंड आई नेवर इनकरेज दैट एज वेल बिकॉज नहीं देखो यार ये बिजनेस है इट्स रिस्की. And I need one fixed stream to be someone who's working. And she was very enthusiastic about it. She was doing well in his career. She got promoted as well. So I said, why take a break in your career? चलते रहो अच्छा कर रहे हो करो. It's more of not about money now. It's more about your time and your ambition and stuff. So वो part चलता रहा. तो अभी भी मेरे को ना जो मेन लगता है दो आई हैव लाइक सेवरल स्ट्रीम्स नाउ बट स्टिल आई फॉल बैक ऑन दैट थिंग कि नहीं यार एटलीस्ट मेरी वाइफ की जॉब तो है. एंड आप रिटायरमेंट का क्या सोचते हो? सी नाउ लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग टू रिटायर. आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे. हाँ. आपका क्या वन इज व्हाट यू एडवाइस पीपल एंड व्हाट इज योर ओन पर्सनल व्यू ऑन रिटायरमेंट? सी यार रिटायरमेंट फॉर मी रिटायरमेंट है मैं ऑलरेडी रिटायर्ड. अगर मैं देखूँ कि व्हाट इज़ रिटायरमेंट इफ़ यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट इफ़ यू कैन रिलेटिवली इंजॉय 60% ऑफ इट एटलीस्ट देन यू कैन से यू आर रिटायर्ड. बट इफ़ यू नॉट एन्जॉइंग लाइक इवन 10% ऑफ इट तो फिर गड़बड़ है. तो आपको 10 से 60 तक अगर पहुंच जाओगे तो रिटायरमेंट है. रिटायरमेंट डजंट मीन यू स्टॉप अर्निंग मनी बाय द वे. मतलब मनी वर्क्स फॉर यू. people conflate this the thing कि earning is see earning money can only be stressful is what people think. There's a correlation people have. But at some point of time there should be a time in your life where you can't even move a finger without earning money. That should be the goal. Your hobby into something which can earn you money. हाँ मतलब वो इम्पोर्टेंट है. तो मेरे लिए मनी एंड रिटायरमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. रिटायरमेंट इज द स्टेट ऑफ माइंड कि आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे को जाने का मन नहीं है कहीं. इफ़ यू डोंट वांट टू गो सम मीटिंग बट यू स्टिल हैव टू गो. यू ट्रैवल करना है. इफ़ यू डोंट हैव टू टेक रेड आई फ्लाइट्स 5 o'clock AM की फ्लाइट नहीं लेनी पड़ रही है देन दैट इज रिटायरमेंट. यानी आई एग्री विथ यू. आई थिंक मेरा भी ऐसा ही है. मैंने जॉब भी छोड़ा था इसीलिए सो दैट यू कैन हैव कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड फ्रीडम अबाउट दैट. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट मनी अलाउज यू टू डू. बट एक बात और बताइए अभिषेक कि आप अभी 3 चीज़ करते हो तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप? आई थिंक AMA में भी आपको काफ़ी लोगों ने पूछा है. कहीं पर कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्या? और कैसे कर पाते हैं आप ऐसा थिंग? बिकॉज मैंने बहुत आई हैव मेड अ लॉट ऑफ पीपल मल्टीटास्किंग इज समथिंग व्हिच डजंट कम इजीली टू पीपल. इवन इफ इट कम्स कुछ ना कुछ कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है. नहीं अग्री है. मतलब कि देखो ऑफ कोर्स होगा ना. आप अपना 100% टाइम किसी में नहीं दे रहे हो. लेकिन मेरा पॉइंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 100% टाइम देने से चीज़ खराब हो जा रही है. उधर आटे में ज़्यादा पानी डाल दिया. तो मेरा वो रहता है कि व्हाट आई डू इज़ बेसिकली डेलीगेट वेल. Fortunately, I've got good people who have stayed with me, and maybe it works both ways actually. If suppose you give them freedom, you give them kind of the right environment to work, they'll stay with you. And I've got good people, so I have always delegated stuff to them. And both startups, ये वो गब्बर सिंह तो मैं खुद ही करता हूँ तो I don't need to delegate it to anyone. So I have delegated well. I have not gone. मतलब देखो यार, Ginger Monkey is basically 100% inbound business. I don't have a sales team or a BD team. I don't actively go and ping people, ping founders ki, do you have work? We have this service, that service. Whenever, every month when we think of doing it, we get more work. तो हमको वो कर ही नहीं पाते. तो वो वाला सीन है. तो and fortunately अभी things have moved to exports right now. तो 70% of our work is now exports. सो उधर से बढ़ रहा है काफ़ी. उधर से लॉट ऑफ दे आई थिंक इंडिया टैलेंट इज़ बेटर देन बाहर का टैलेंट राइट नाउ एंड इज़ चीपर एज वेल. तो दे रियलाइज कि नहीं यार तो बहुत सही है इसको और इनसे और काम लेते हैं. तो दैट वी आर सीइंग राइट नाउ मोर एंड मोर वर्क इज़ कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड गुड है. सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा है तो कंट्री के लिए भी अच्छा है. तो वो एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऑफ कोर्स इफ़ यू आर मल्टीटास्किंग इट्स गोना compromise at least 1 or 2. It happens, but what also does it also gives me enough free time to think. For me, see the line of business I am in, it's creative, right? You need to have that free recoil time कि आप कैसे वो enough free time होना चाहिए. आप सोचो आप दिमाग फ्रेश रहे आपका ताकि when moment comes it takes you just 5 minutes to crack something, है ना. वो मैंने बना लिया है कि अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है I take decisions fast. I take 5-10 minutes to crack it. Whether it's in
हुड में है, कुछ कॉल लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या अपने बिजनेस में हो, या मुझे पर्दे खरीदने हो, आई एम ए वेरी क्विक डिसीजन मेकर नाउ। 5 मिनट में, हाँ ये ठीक है, लॉक करो। घर भी मैंने जो खरीदा मैंने 2 दिन में लॉक कर दिया। मंडे गया, मेरे को पसंद आया, वाइफ ने देखा भी नहीं था, मैंने वेडनेसडे को गया, मैंने टोकन दे दिया उसको, ये अच्छा लग रहा है, एंड दैट प्रूव्ड टू बी गुड। तो अभिषेक, एक और बात बताइए, फॉर पीपल हु आर न्यू टू सोशल मीडिया, आई थिंक आपने तो पूरा जर्नी देखा है लास्ट 10-15 साल में। हम्म, जैसे सोशल मीडिया has become a big driving part for everything, you know. So what tips do you want to give people in terms of if they want to go viral? What do you suggest? माने क्या recommend करते हैं आप? Like how do they, like would you firstly like advise them to look at this as a permanent profession, हम्म, and secondly माने to derive virality or succeed in this field, हम्म। क्या suggest करते हैं आप? Huh. So, see, I guess I'm not the best person to advise this because I don't follow any rules myself, right? हम्म, I don't basically go about putting hashtags and ये हम्म, वो ऐसा वैसा, वो जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो मैं नहीं करता, मतलब अब तो एज भी हो गई, अब इट डजंट लुक गुड फॉर मी टू डू हम्म, दैट. But broadly, if you see, personal brand of course helps. I mean, Vivek, you would have seen it yourself when you started doing Twitter Spaces. right. Suddenly, your following also would have gone up, and people would have started noticing as well. So, personal brand of course helps, and if you can leverage your personal brand to help your business, nothing like it, right? हम्म, So that's where a lot of business leaders are also realizing now. They are very active on LinkedIn, Twitter. हम्म, They are getting their team to do it. They are promoting their posts and stuff. So people have realized that personal brand of course helps. It opens doors. So in हम्म, that regard, make your personal brand, but don't make it the mainstay कि आप बस एक brand ही हो. हम्म, What you do is you curate content from इधर उधर and put stuff. हम्म, अपना कुछ नहीं करते हो तो see, you have to have an IP yourself, right? आप खुद का IP कुछ नहीं है, आप बस एक एग्रीगेटर हो, तो फिर फाइट है, because then there is no entry barrier for anyone. What I हम्म, see these days is that there are a lot of fin influencer, there are a lot of these guys. These are guys that aggregators of information, right? And what they do is they try to put it in a format which is easier to understand and stuff. So हम्म, aggregator रहना, it's fine, but soon you will be replaced. अगर आप खुद का आईपी है, अगर कल को कोई म्यूजिशियन है, ए आर रहमान है, या कोई कोई भी है, तो these guys are personal brands because they have created stuff, right? They have actually created original stuff. लेकिन जो बंदा जो ए आर रहमान को कॉपी करता है, या जो बंदा जो मोहित चौहान या अभिजीत भट्टाचार्य का गाना गाता है, उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा. ही जस्ट, है ना, इंडियन आइडल में क्या होता है, यही होता है ना कि दे आर लाइक, पूरा शो में दे आर जस्ट इनैक्टिंग और सम सॉन्ग व्हिच इज सung बाय समवन एल्स. जब तक खुद का ओरिजिनल आपने हिट नहीं दिया तो कुछ नहीं पूछेगा. सेम यार भी अपना ओरिजिनल हिट दो. एग्रीगेशन इज फाइन, इज गुड टू बिल्ड दैट इनिशियल सेट, बट यू विल हिट अ प्लेटू. खुद का कुछ नहीं है तो फिर प्लेटू हिट होगा. और एक और चीज है, टिप्स ये है कि still we are doing well. Finance with Sharan है, तुम्हारे अक्षत है, ये सब जो लोग हैं, what they're doing is their IP is basically putting it in a humorous format, I guess. हम्म, Not the information as such, but उनको लेके उसका स्किट बना के उनको फनी बना के, वो आईपी है उनका. तो चल रहा है, मैनरिज्म है, जो भी है. तो आप कोई ना कोई आईपी होना चाहिए आपका, तभी आप हिट होगे. तो जस्ट आप लोगोगे कि हाँ, हियर आर 10 टिप्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो वो तो सब लोग कर रहे हैं. एंड रीच बढ़ाना है इनिशियली, तो स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद बिगर अकाउंट्स. एंड बिगर अकाउंट्स आर ह्यूमन, दे आर नॉट ब्रांड्स, दे आर नॉट, दे वोंट पुट आउट. सपोज आपका कंटेंट अच्छा लगा उनको, तो आपको लिख देंगे कुछ नीचे में, हम्म, तो आपका रीच बढ़ जाएगा. कल ये हुआ ना मेरे साथ, एक आई हैड पुट आउट सम ट्वीट एंड अबाउट बुकिंग अ मील फॉर माय पेरेंट्स. सो देयर वाज, वो ट्वीट वाज कि whenever my parents travel फ्लाइट में और मैं नहीं हूँ साथ में, तो ऑलवेज मेक इट पॉइंट टू बुक ए मील फॉर देम, इवन इट्स अ 1 hour फ्लाइट. तभी एक, उससे क्या होता है कि इवन इफ दे नो डोंट नीड फूड, बट समटाइम्स व्हेन द एयर होस्टेस गोज अराउंड ना, एंड देन आपका नाम, अच्छा मिस्टर अस्थाना, देयर इज अ मील बुक्ड फॉर यू, सडनली देयर इज अ लेवल ऑफ प्रोमिनेंस. अच्छा लगता है, अरे वाह, मेरे लिए खाना बुक हम्म, है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ, उनको दैट द कॉस्ट ऑफ खुशी इज 250 रुपया या 350 रुपया. इट्स द चीपेस्ट वे टू बेसिकली डू इट. सो मैंने ये ट्वीट किया कि ये एक अच्छा हैक है, मतलब आई डू. हम्म, तो एक बंदा बोलता है कि अरे सर, मेरा एक स्टार्टअप है ऐसे करके, और हम यही करते हैं, हम सब कुछ बुक करके देते हैं आपको. उस बंदे को 70,000 व्यूज आए उस पे, उस ट्वीट पे. एंड उसने बोला कि मेरे तो बहुत सारे, मेरे को ऑर्डर्स भी आ गए, ये वो, थैंक यू सर, मेरे को डीएम किया उसने. तो हाँ, तो मैंने बोला देखो, उसने कुछ नहीं किया, ही जस्ट रिप्लाइड ऑन अ प्रोमिनेंट अकाउंट, और उसको मस्त रीच और बिजनेस चालू हो गया. हो सकता है दिस कुड बी द सीड फॉर हिज फर्दर एक्सपेंशन. सो कब क्या हो जाए पता नहीं, तो कीप इंटरेक्टिंग विद बिगर अकाउंट्स.
and be smart, be substantial, and create your own IP. That's the only step I'll give. Nice, nice. This is good learning for me also. So thank you, Abhishek. I think आपने you have been fairly vocal about a lot of issues and one of the most well-known people on social media for a long period of time. So as we come to the close of our podcast, a few things which I wanted to ask you. Your best tweet until now. Okay. What has been your best and your worst tweet since you have started Twitter? See, I think one of the tweets I like the most is one is which I keep quoting in my talks as well. That Mm. no matter how much you achieve in life, someday a guy will wrap samosas with your obituary in paper. Nice. And So, which is the one which got the most? So this is of course very, very, very stoic. And yeah, which is the one most. which got the maximum reach and आपको लगता है what's that one tweet? Is this the one Uh, or is there I something think else? this got a lot of like. So This was see, क्या होता है ना कि some tweets are not timeless. Let's say India wins the World Cup, and समझ I गया tweet, वो tweet तो टाइमलेस है हाँ, तो उस टाइम पे बहुत हिट जाएगा, लेकिन 2 साल बाद लगेगा कि ये तो क्या था कुछ ये क्या मतलब कर रहे थे हाँ समझ गया एंड वर्स्ट क्या था जिसमें आपको देख के लगा कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए था या वो मैंने वन डिलीट कर इन योर लाइफ दिया। इन योर वो मैंने ट्विटर वो मैंने डिलीट कर दिया। बट क्या था अगर बोल सकते हो आप तो एक I don't know. I think sometimes what happens is that you get, and this happens with me a lot because as I told you, right, mine हम्म, is not a very curated kind of approach to हम्म, Twitter. I just see something and I tweet it. Sometimes I mean, lack of judgment maybe. Sometimes I react to stuff which basically I should not have, and that could be my biases as well. आप बोल सकते हो लाइक कोट हाँ, अनकोट में कि ये किस आपने ट्वीट किया था एंड वो आप रिग्रेट करते हो मैं तो रिग्रेट करता हूँ कि मैंने शायद पाकिस्तानियों से लड़ाई की थी शायद। अच्छा 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 तो वो तो आप रिग्रेट करते हैं हाँ, मतलब कि I shouldn't have been mean to them. Basically, they're people, right? I mean, they're friends. I mean, a lot of because I've stayed in this platform for long. हम्म, A lot of Pakistani people also are friends. They know me. They talk to me sometimes. They're on Instagram with me, and they're very normal people. They're not like those extremists and all. तो वो उनको बुरा लगा कि यार आपने ऐसे क्यों बोला। मैंने क्या पाकिस्तान को क्या किया था आपने पोस्ट कि ऐसे कुछ पाकिस्तान का नाम था कि रुको मैं देखता हूँ मिलेगा मेरे अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम दैट्स फाइन को। पाकिस्तान भिखारी है ऐसे कुछ लिखा था मैंने। Acha, acha, acha. Okay. And one question on your AMA sessions, which has been the most interesting for you. द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी, यार मुझे याद नहीं रहती नहीं चीज़ें ऐसी। Acha. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तो एक्चुअली कुछ तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट एक्चुअली, कुछ तो था कि जिसमें देवर आई थिंक मोस्ट ऑफ माय एएमए स्टफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑन दिस पॉडकास्ट। Acha. Okay. This is like an AMA only for me. So lot of that stuff. See, one good thing is that whenever I talk to people, right, like you and all, entertain people, what happens is that a lot of stuff that I haven't thought of earlier comes out in this. So this podcast will have something new which I haven't spoken anywhere else. I did a podcast last week itself. There also something I told which Mm, came out. That it's basically unearthing, right? I mean, mm, you are the JCB machine, and you have to just unearth stuff, so mm. it comes out. So that way, some gems would have come out, some bad nuggets would have come out. But Nice, nice. So, I आपको last few questions. Who's your best Twitter celebrity? Who's your most favorite Twitter celebrity today? most favorite Twitter celebrity Elon Musk. And non like Indian. इंडियन में इंडियन में कौन है? आई थिंक आई लाइक संदीप पारेख a lot. Acha. Nice. It's fun. So I love interacting with him as well. Like, I made an offline friendship as well with him because of Right. Twitter. Yeah, we see that. Yeah, That's yeah. So that's he's quite smart, and he's achieved a lot as well. right. And he's quite cool. Yeah. Right, right. And what's your best book, best podcast, best song, best movie? Best book. I don't read many books actually. I आपने एक बुक कुछ ट्वीट किया था कुछ महीने पहले कुछ बहुत फनी माने हाँ कॉम्प्लेक्स था वो बुक हाँ गोडे रेशर बाग, तो वो लास्ट बुक था, मतलब इट्स द इटर्नल ब्रेड बेसिकली, इट्स कॉल्ड गोडे रेशर बाग। बेसिकली it's a complex book which it tries to figure out mathematics out of patterns. So it's good, it's very dense, it's very difficult to read. I mean, read only when you have achieved nirvana in your life. Otherwise क्योंकि it's मैंने gonna शुरू be किया था लेकिन बहुत काफी मुश्किल हुआ मुझे मुश्किल है। हाँ, वो बहुत मतलब बहुत ही डेंस है, मतलब अभी है कि यार उतना क्यों ही करना है।
See, now there is an internet, right? Earlier, people had their libraries. They would sit in that library and gain wisdom and nirvana. Now हम्म, there is internet, तो आप जो ले सुनते हो वो तुरंत गूगल देते हो, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। पहले तो वो नहीं था। आपसे उस बुक के बारे में एक अलग से ये मैं ट्विटर बिल्कुल स्पेसेस बिल्कुल, करते हैं। वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब टफ है, और लगता है कि हाँ कुछ ठीक है, दिमाग में शेयर हमारे नेक्स्ट ट्विटर स्पेस में विल डेडिकेट 15 मिनट्स टुवर्ड्स दैट बुक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड द बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट मूवी, बेस्ट पॉडकास्ट इफ यू हियर टू एनी पॉडकास्ट सीरीज। Best series, I think Succession is one of my favorites. It's That's very beautiful. layered, very well written dialogues and stuff, and I like the performances as well. Hmm. It's a complete show. And best podcast, I would say there's this guy called Carlin. I'm not forgetting the history का है उसका. Uh, Mm-hmm. uh, I used to hear, I mean, listen to it, but अब छूट गया. Then there is Brown Pundits as well, by Omar Ali. It's very, Mm. it Mm-hmm. talks about, I have an interest in history, so it's good. It's something which I like. Brown Pundits का है, I can check it out. Mm-hmm. और movie, I guess movie बहुत difficult है बताना. I think that's so many अच्छा, movies. बेस्ट And सॉन्ग। I think the entire album of दिल चाहता है। अच्छा, वंडरफुल। मूवी आप बोल रहे थे, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया। मूवी यार बहुत है, मतलब इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ डिफरेंट मूवी अच्छी लगेंगी आपको। अभी जब मैं बच्चा था तो मेरे को मोहरा वाज माय फेवरेट, बिकॉज सुनील अच्छा, शेट्टी और अक्षय कुमार साथ में थे। अब देखूंगा तो क्या क्रेज है। आप कौन सा फेवरेट है इस स्टेज में लाइफ में? इस स्टेज ऑफ लाइफ में कौन सी मूवी आई थिंक, यार मूवी मूवी मैं सीरीज देखता हूँ आजकल ज्यादा। मैं आजकल अच्छा, सीरीज बहुत देखता हूँ। तो सक्सेशन आपने है। कौन बोला? अब एक देखो एप्पल टीवी पे एक आई है, साइलो, बहुत अच्छी है वो। अच्छा, साइलो, ओके, नाइस। ठीक है अभिषेक, so thank you so much. It was really a pleasure interacting with you. One of the longer podcasts that I've hosted, and I don't think I've still got enough of you, but we'll So uh, keep talking, no worries। we'll keep talking and we'll finish some other pending tasks in our future spaces. So Sure, thank sure, you so absolutely। much. Well, it was a great pleasure being here। Thank Thank you. you as always, yeah। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.